Hello guys, so today we are starting with our first topic, which is gingiva. So let's start. Okay, so it's a periodontology topic, and the whole this content is actually taken from the Carenza, which is a standard book for the periodontology. Now, what is gingiva? Okay, so now first. Okay, that's done. Now gingiva. So this is the part of a masticatory mucosa. Now, if I tell you what is masticatory mucosa, so the attachment or the covering of the hard palate plus the gingiva is the masticatory mucosa. So it's a part of a masticatory mucosa which extends from the dentino-enamel junction. Now, if you could see, so this actually extends from the dentino-enamel junction. So this actually extends from this dentino-enamel junction. The gingiva starts from here. Okay. Now, so this is basically of three types. Okay, so we have a free or a unattached gingiva. Second, we have a attached, and third, we have a interdental or a interproximal. So if I teach you with the diagram, so this is what is free or a marginal gingiva. So this is basically the unattached. Now comes the attached, and this is the interproximal. Okay, so we have three kinds. Now let's jump onto the topic. So now we have now let's read about the what is marginal gingiva. So marginal or a free gingiva, it actually surrounds the tooth in a collar-like fashion. So if you could see here, so it actually surrounds the tooth in a collar-like fashion. Now most apical point of the now this is what is gingival zenith basically. बहुत ट्रीटमेंट्स वगैरह करोगे ना तो उसमें बोलता है कि जिंजाइवल जिनथ मेंटेन करके रखना है, कुछ भी अभी तो इतना हार्ड नहीं है समझना जिंजाइवल जिनथ है क्या। ठीक है, अगर मैं एक प्रोब लेती हूँ और उसे यहाँ इंसर्ट करती हूँ, ठीक है, तो अब मैंने प्रोब यहाँ इंसर्ट किया, इसका जो टिप है, ठीक है, जितना उसने वो अनअटैच जिंजाइवा तक जहाँ तक वो गया फ्री सरफेस तक, उसका जो टिप है, ठीक है, इस पॉइंट से टूथ के पॉइंट से, दिस इज़ द जिंजाइवल जिनथ ऑफ अ टूथ। ठीक है, डन, बस सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, इतना उसमें परेशान होना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नाउ लेट्स कम टू दी दिस इज बेसिक डायग्राम ऑफ इट। सो दिस इज व्हाट gingival sulcus is. Okay, so this is our free or a marginal gingiva. Now come to the attached gingiva. This is the alveolar process, and this is the mucogingival junction, which is a demarcation for the attached gingiva basically, and this is the alveolar bone. So now let's come to the okay, now let's read the what is basically gingival sulcus is. So अभी ऊपर डायग्राम में देखा हमने जिंजाइवल सल्कस, ये रहा, ठीक है। अब एक जगह और दिखाती हूँ आपको जिंजाइवल सल्कस, तो बेटर दिखेगा। ये तो वो डायग्राम बताने के लिए किया था। अब इसे अगर क्लिनिकली भी अगर मैं देखना चाहूँ, सो दिस इज़ बेसिकली दी free gingiva, this is attached, this is mucogingival junction, this is interproximal। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जिंजाइवल सल्कस मैं आपको दिखा रही थी। सो दिस इज जिंजाइवल सल्कस, ये दिख रहा है। So basically this is gingival sulcus. So this is a V-shaped sulcus or a empty space, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। So this is basically V-shaped shallow crevice or a space around a tooth, ठीक है। So ये space around a tooth, प्रोबिंग डेप्थ जो क्लिनिकली है नॉर्मल है वो है 2 to 3 mm, इससे ज़्यादा है तो फिर आपका क्या है, पॉकेट है। जिंजाइवल सल्कस डेप्थ 2 से 3 mm से ज़्यादा है तो क्या है, पॉकेट है। नाउ लेट्स कम टू द अटैच्ड जिंजिवा। दिस इज डिमार्केटेड बाय द म्यूकोजिंजाइवल सल्कस, ठीक है।
और ये अटैच जिंजिवा, विड्थ ऑफ द अटैच जिंजिवा जो है आपका वो आता है आपका इंसाइजर पे ज़्यादा होता है और पोस्टीरियर्स पे नैरोअर होता है। इसकी जो विड्थ है आपकी वो बढ़ती चली जाती है, घटती चली जाती है सॉरी एज के साथ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विड्थ क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रोबिंग डेप्थ नॉर्मली कितना होता है। ठीक है, नाउ कम टू द इंटरडेंटल जिंजिवा। अब ये भी क्वेश्चन है, ये कोल शेप्ड। अब इंटरडेंटल जिंजिवा जो है वो एंटीरियर रीजन में, आगे की टीथ में पिरामिडल शेप का होता है, पोस्टीरियर रीजन में कोल शेप का होता है। और ये कोल शेप मोस्ट प्रोन टू द इन्फेक्शन है। अब ये कोल शेप या पिरामिडल शेप है क्या? बेसिकली बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बस समझने का है। इसमें देख रहे हो आप, इसमें अगर मैं ये एंटीरियर सरफेस पे आगे के दांतों में अगर मैं ये इंटरडेंटल दिखाऊँ आपको तो क्या है ये है, इसकी बात कर रहा है वो पिरामिडल शेप। ठीक है, और यहीं पोस्टीरियर टीथ में अगर मैं मोड़ा ड्रॉ करूँ तो ये इंटरडेंटली ऐसे कोल शेप दिखता है। ठीक है, बस यही है। उसके बाद अब आ जाते हैं हिस्टोलॉजी पे। अब हिस्टोलॉजी जो होती है जिंजिवा की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है, अब ये 3 तरीके के आपको एपिथेलियम दिखाई देते हैं इसमें, ओरल आउटर एपिथेलियम, सर्कुलर एपिथेलियम, जंक्शन एपिथेलियम, जिसमें से कि जंक्शन एपिथेलियम सबसे लार्ज है। ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब इसमें जो एक क्वेश्चन है वो है कि जो जिंजिवा होता है उसका जो प्रिंसिपल सेल है वो क्या है? प्रिंसिपल सेल जो जिंजिवा का वो क्या है? केराटिनोसाइट्स। अदर सेल्स जो आपको देखने को मिलते हैं लैंगर सेल्स, मार्कर सेल्स, मेलानोसाइट्स। तो लैंगर सेल्स, मार्कर सेल्स डिफेंसिव सेल्स है, मेलानोसाइट्स तो यू नो। ठीक है, नाउ अब ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये मगअप करने की चीज़ है। ठीक है, बस इसमें ये याद रखो कि नॉन केराटिनाइज्ड अगर है तो इसमें ग्रैनुलेशन और कॉर्नियम लेयर नहीं है, बस ये याद रखो। ठीक है, बाकी सब में है, लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ग्रैनुलेशन और कॉर्नियम लेयर नहीं है। ठीक है, अब ये केराटिनिन, इन्वेलोकिन, ये 2 टाइप के प्रोटीन हैं जो कि इसमें मिलते हैं। और जो सेल टू सेल अटैचमेंट है इसकी, ठीक है, वो डेस्मोसोम, एडहेरेंस, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन है। किसकी अटैचमेंट की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेल टू सेल अटैचमेंट ऑफ अ जिंजिवा की हिस्टोलॉजी में। ठीक है, किस से अटैच होते हैं? एक दूसरे से, डेस्मोसोम से, एडहेरेंस से, टाइट जंक्शन से, गैप जंक्शन से। ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको डेंटल पल्स में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप आ जाओगे। अच्छा, अब बेसिकली चीज़ बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है कि एक कॉर्नियम, लूसिड, ग्रैनुलोसम, स्पाइनोजम, बेसिल, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, बहुत बेसिक। ये चारों के चारों लेयर्स, ठीक है, कुछ नहीं है, ये चारों के चारों लेयर्स बेसिकली ऐसा समझ लो कि स्टेजेस हैं केराटिनोसाइट्स फॉर्मेशन की। ठीक है, अब जिसमें से कि बेसेल और स्पाइनोजम लेयर जो है, ये दोनों की दोनों क्या है? जर्मिनेटिव लेयर है और प्रोलिफरेटिव लेयर है। जबकि जो ग्रैनुलोसम और कॉर्नियम है ये आपकी डिफरेंशिएशन लेयर है, डिफरेंशिएटिंग लेयर से बेसिकली। ठीक है, तो जो स्ट्रेटम बेसेल है सबसे नीचे है। ठीक है, और ये कांस्टेंट जो है आपकी प्रोलिफरेशन में लगी रहती है। ठीक है, अब इसमें जो याद करने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। अब ये जो इसकी सेकंड लेयर है, स्पाइनोजम वाली जो लेयर है, बेसिकली ये जो है आपकी प्रिकली लेयर है। ठीक है, और इसमें आपको केराटिनोसोम्स के 8 या अब केराटिनोसाइट्स के 8 या 10 ऐसे लेयर्स आपको मिलते हैं। प्रिकली लेयर होती है ये बेसिकली, यहाँ से सेल फॉर्म होकर ये ऊपर की लेयर की तरफ जाता है। तो ये जो केराटिनोसोम्स इसके अंदर मिल रहे हैं उनको हम ऑडलैंड बॉडीज़ बोलते हैं। मॉडिफाइड लाइसोसोम्स होती हैं जिसके अंदर ये एसिड फॉस्फेटेज होता है। अब ये एसिड फॉस्फेटेज, मॉडिफाइड लाइसोसोम्स, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ऑडलैंड बॉडीज़ पे क्वेश्चन है कि आपको किस लेयर में देखने को मिलती है। तो ये आपकी स्पाइनोजम लेयर में देखने को मिलती है। कुछ मगअप करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि नीचे से वो फॉर्मेशन सेल की स्टार्ट हुई तो अब वो ऊपर की तरफ जा रही है, वहाँ जाके इकट्ठी हो रही है 8 से 10 लेयर, और बहुत सारी लेयर जो ऐसी इकट्ठी हो रही है वो एक ऑडलैंड बॉडीज़ जैसी दिखती हैं। ठीक है, बस दैट्स इट। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ आप, जो ये दोनों लेयर हैं नीचे की, स्पाइनोसोम और बेसिल, इन दोनों में आपको मेलाटिनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, सिंथेटिक, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल, मेलाटिनोसाइट, ये सब देखने को मिलता है जो कि सिंथेसाइज करता है प्री मेलानोसोम्स, और इसके अंदर के टायरोसोम्स होते हैं। ठीक है, वैसे इनसे बहुत कम ही क्वेश्चन देखा है मैंने, एक ही ऑडलैंड बॉडीज़ पे क्वेश्चन देखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ये देखा है कि जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, ठीक है, ये चारों की चारों लेयर्स में मिलते हैं, लेकिन आपको लैंगरहैंस सेल्स जो हैं वो जंक्शनल एपिथेलियम में नहीं मिलेगा। ठीक है, और
लैंगरहैंस सेल्स है क्या बेसिकली, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, लिम्फोसाइट्स जो कि लिम्फोसाइट्स की जो कि कंटेन करती हैं जी स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो कि बर्बिक ग्रेन्यूल्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी एक क्वेश्चन है, ये बर्बिक ग्रेन्यूल्स क्या है, कहाँ मिलती है, क्या होती है, कहाँ नहीं होती है, ये सब पूछ लेगा। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन का एरिया है। ठीक है, दैट्स इट। मर्कल सेल्स पे भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ये आपके डीपर लेयर में पाई जाती है, ये नर्व एंडिंग को हार्बर करती हैं और ये जो होती है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है बाय दी, या एडजेसेंट सेल से कनेक्टेड होती है बाय दी हेमिडोस्मोसोम। तो एक आप क्वेश्चन कभी कभार मर्कल सेल्स पे भी देखें। ठीक है, नाउ एपिथेलियम जॉइंड बाय दी कनेक्टिव टिश्यू बाय दी अंडरलाइन बाय दी बेसल लमाइना। अब ये जो एपिथेलियम है ये कनेक्टिव टिश्यू से कैसे ज्वाइन हो रहा है, बेसल लमाइना से। अब बेसल लमाइना कैसे कंसिस्ट है भाई साहब, ये 2 लेयर से कंसिस्ट है, लमाइना लूसिडा लमाइना डेंसा। और ये लमाइना लूसिडा लमाइना डेंसा जो है दोनों को दोनों हेमिडोस्मोसोम से कनेक्टेड है। लमाइना डेंसा में जो टाइप 4 कोलेजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, लमाइना लूसिडा इसके अंदर लेमिनिन होती है और ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, ना जैसे जैसे डिग्री ऑफ केराटिनाइजेशन जो है वो आपका जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे डिग्री ऑफ केराटिनाइजेशन घटती चली जाती है। अब ये डिग्री ऑफ केराटिनाइजेशन का काम क्या है बेसिकली, केराटिनाइजेशन क्यों कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए बस। ठीक है, अभी केराटिनाइजेशन जो है आपकी वो आपकी सबसे ज़्यादा जो होती है पैलेट पे होती है, फिर जिंजिवा पे होती है, फिर वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ टंग पे होती है, चीक पे होती है। ठीक है, चीक पे सबसे कम होती है। ठीक है, पैलेट पे सबसे ज़्यादा होती है, फिर जिंजिवा पे होती है, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ टंग पे होती है। ठीक है, ये सारा सारा आपको याद रखना है। अब ये एक पार्ट है थोड़ा याद रखने लायक मगअप करने की चीज़ है। अब इसमें K1 2 3 4 के है क्या, बेसिकली ये है केराटिनोसाइट्स। ठीक है, अब K1 K2 K10 K2 ये 10 to 12 K1 2 और 10 12 अब कहाँ मिलती है, एपिडर्मल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन एरियाज में मिलती है। K6 16 जो होती है हाईली प्रोलिफरेटिव एपिथेलियम में देखने को मिलती है। K5 K14 स्ट्रेटिफिकेशन स्पेसिफिक साइटोकेराटिन में देखने को मिलती है। K19 जो होती है आपको पैराकेराटिनाइज सेल्स में देखने को मिलती है जो कि एब्सेंट होती है ऑर्थोकेराटिन। अब इनमें से किसी पे इतना क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, लेकिन K19 पे मैंने क्वेश्चन देखा है कि कहाँ पाई जाती है कहाँ नहीं पाई जाती। तो पाई जाती है पैराकेराटिनाइज में, एब्सेंट होती है ऑर्थोकेराटिनाइज में। ठीक है, ये पार्ट आपका हो गया। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सारा का सारा पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम इस पे। ठीक है, अब हमने पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ टिश्यू का वो कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे जो हम एपिथेलियम बता रहे थे 3 टाइप के। पहले हो जाता है आउटर एपिथेलियम और ओरल एपिथेलियम जिसकी थिकनेस की 0.2 0.3 mm है। ये केराटिनाइज पैराकेराटिनाइज होती है। अब मैं जहाँ भी ये टर्म यूज़ कर रही हूँ केराटिनाइज पैराकेराटिनाइज, तो आपको दिमाग में चल जाना चाहिए कि कौन सी लेयर है कौन सी लेयर नहीं है। 4 लेयर हमने उधर पढ़ी थी, बेसेल, बोलो बेसेल, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोसम और याद करो, मुझे भी याद ही करनी थी, कॉर्नर। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं सर्कुलर एपिथेलियम पे। ठीक है, अब इस ये जो चारों लेयर है ऑल 4 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है, जो भी 4 मैंने अभी नाम लिए। ठीक है, सर्कुलर एपिथेलियम क्या है, थिन है, नॉन केराटिनाइज्ड है। अब नॉन केराटिनाइज से आपको वैसे पता चल गया कौन सी 2 लेयर नहीं है, ग्रेनुलोसम कॉर्नर उसमें नहीं है भैया। ठीक है, K4 K13 जो होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं, कोई मर्कल सेल इसमें प्रेजेंट नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने देखा है ना, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि मर्कल सेल्स पे मैंने क्वेश्चन देखे, वो मैंने क्वेश्चन यहीं देखा है कि सर्कुलर एपिथेलियम में मर्कल सेल होता है नहीं होता है, या कौन सा सेल नहीं होता है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, लैंगरहैंस ये हो और मर्कल। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मर्कल सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब K19 इसोफेजियल टाइप ऑफ साइटोकेराटिन प्रेजेंट होता है इसमें। K19 जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका सेमी परमिएबल होती है, ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है, सर्कुलर एपिथेलियम सर परमिएबल है, नॉन परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो याद रखना सेमी परमिएबल। अब ये आ जाता है भैया सबसे बड़ा टॉपिक आपका जो है, ठीक है, वो है जंक्शन एपिथेलियम। अब ये कॉलर लाइक बैंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का, ये नॉन केराटिनाइज्ड है। अब याद रखना सर्कुलर भी नॉन केराटिनाइज्ड था, जंक्शन भी नॉन केराटिनाइज्ड है। तो केराटिनाइज्ड क्या बचा अपने पास, सिर्फ आउटर वाला। ठीक है, अब ये जो लेंथ है इसकी 0.25 to 1.35 है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। नाउ फॉर्म्ड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ओरल एपिथेलियम है ना, रिड्यूस्ड एपिथेलियम। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने 2 टाइप के फॉर्म होते हुए देखे हैं। पहला पूछ देता है कि जंक्शन एपिथेलियम किससे फॉर्म हो रहा है, तो उसमें ना ऐसा करता है कभी कभार कि सिर्फ या तो सिर्फ ओरल एपिथेलियम वो होगा आपके चारों ऑप्शन में होगा, या फिर सिर्फ रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम ऑप्शन में होगा। तो जब दोनों में से कोई एक होता है या दोनों एक साथ होते हैं तब तो मार्क करना इजी है। ठीक है, बट कभी एक क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उसमें चारों ऑप्शन में ये दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, आउटर एनामल
ए और बी है आपका रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम। तो ऐसे केसेस में मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो मार्क होता है या जो आंसर है वो आपका रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम मार्क होते हुए मैंने देखा है। तो ये चीज़ बस एक याद रखने वाली चीज़ है। अब ये जो होती है इम्प्लांट के अराउंड भी फॉर्म हो जाती है भैया, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका केराटिनोसोम्स जो होते हैं इसमें से एब्सेंट हो जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये इसलिए भी यहाँ पे बन जाता है बिकॉज केराटिनोसाइट्स जो है आपका मेन जो होता है वो सबसे प्रीडोमिनेंट सेल्स है इन द जिंजिवा, बट ये जंक्शन एपिथेलियम में नहीं है। अब K19 जो है इसमें प्रेजेंट है, जबकि K19 ऊपर हमने पढ़ा वो ऊपर भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, एब्सेंट है। नाउ स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, जंक्शन एपिथेलियम जो होता है वो टूथ सरफेस से अटैच होता है बाय द इंटरनल बेसल लमाइना। ये भी एक क्वेश्चन है कि जंक्शन एपिथेलियम और टूथ सरफेस से कैसे अटैच्ड है इंटरनल बेसल लमाइना से, लेकिन यही क्वेश्चन ऑपोजिट भी पूछ लेते हैं। अगर पूछेगा कि जंक्शन एपिथेलियम जो है आपका टूथ से कैसे अटैच है, तो वो तो इंटरनल बेसल लमाइना से अटैच है, लेकिन ये बेसल लमाइना से या फिर कनेक्टिव टिश्यू से कैसे अटैच है, तो वो ये कनेक्टिव टिश्यू से कैसे अटैच है, तो वो एक्सटर्नल बेसल लमाइना से है, ठीक है। अब ये अटैचेस टू द एफिब्रिलस। अब ये जो टर्म है ये मैं आपको बोलूँगी कि याद करके रखना, जब हम सीमेंटम पढ़ेंगे वहाँ ये लाइन क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके जो जंक्शन एपिथेलियम के 3 जोन है, अपाइकल है, मिडिल है, कोरोनल है। अब बस इतना याद रखो कि इसकी जर्मिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, एडहेसिव एंड परमेबिलिटी है, बस, ठीक है। अब ये भी एक टर्म है, ठीक है। पूछ देता है डेंटिनो जिंजाइवल यूनिट क्या है आपका, या फिर फंक्शनल यूनिट क्या है। फंक्शनल यूनिट है जंक्शन एपिथेलियम प्लस जिंजाइवल फाइबर्स। अभी जिंजाइवल फाइबर्स भी अपने आप में एक टॉपिक है, बट अभी फिलहाल जंक्शन एपिथेलियम खत्म करते हैं, और जंक्शन एपिथेलियम एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब इसमें फंक्शन क्या क्या है, ये जो 3 चीज़ें पढ़ी ना आपने, ये 3 चीज़ें फंक्शन है, ठीक है। फॉर्मली अटैच, ठीक है, एडहेसिव, फॉर्मली अटैच टू सरफेस एक्ट एज एन प्रोटेक्टिव लेयर, एक्सेस अलाउ करता है फॉर दी जिंजाइवल फ्लूइड कंपोनेंट इम्यूनो होस्ट डिफेंस के लिए, तो परमेबिलिटी, ठीक है। कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद रैपिड टर्नओवर, ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका रैपिड टर्नओवर, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना अभी जर्मिनेटिव, इसमें ये जो मैं आपको बता रही थी जर्मिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताया ना, ये 3 जोन याद रख लो, इसके फंक्शन क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जिंजाइवल फ्लूइड पे। अब जिंजाइवल फ्लूइड पे कैसा क्वेश्चन आता है, जिंजाइवल फ्लूइड या सर्कुलर फ्लूइड पे क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ये बढ़ जाता है, घट जाता है, कि नॉर्मल रहता है, कि इसको कुछ नहीं होता है, अनचेंज्ड रहता है, ऐसी है, ठीक है। तो देखो जो जिंजाइवल फ्लूइड होता है इसकी एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी है। अब जिस चीज़ की एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी हो वो इन्फेक्शन में क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, ठीक है। सो इट इंक्रीजेस, ठीक है, बस इतना याद रखो। अब इसमें है क्या ऐसा जो कि इसकी एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी है, तो प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, ठीक है। और इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द एडहेशन ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है, क्लीन्स द मटेरियल फ्रॉम द सर्कस। अब जो जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू है इसका 60% कोलेजन फाइबर है, 5% फाइब्रोब्लास्ट नर्व से 35% मैट्रिक्स है, नोन एज अ लमाइना प्रोप्रिया। अब ये चीज़ याद रखना कि जो कंडक्टिव टिश्यू है उसमें 60% कोलेजन फाइबर है, 5% फाइब्रोब्लास्ट है, 35% उसका मैट्रिक्स है, जो कि जिसको हम बोलते हैं लमाइना प्रोप्रिया। अब ये भी 2 टाइप की है, रेटिकुलर, पेपिलरी, ठीक है। और इसमें जो टाइप 1 कोलेजन है ये इसका मेजर बल्क फॉर्म करता है। अब ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो मेजर बल्क है वो किसका है, कौन सी कोलेजन का, तो टाइप 1 का है। नाउ कम टू द जिंजाइवल फाइबर्स। अब जिंजाइवल फाइबर्स क्या करती हैं, जिंजाइवल फाइबर्स टाइप 1 जो है इससे ज़्यादा कंपोज होती हैं। ये क्या करती हैं कि मार्जिनल जिंजिवा को फॉर्मली अटैच करती हैं टूथ के साथ। अब ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं टूथ को, फोर्सेस ऑफ मैस्टिकेशन को बेयर करती हैं। ये मार्जिनल जिंजिवा को सीमेंटम से यूनाइट करती हैं। ये 3 तरह की होती हैं, जिंजिवोडेंटल, सर्कुलर, ट्रांसेप्टल। जिंजिवोडेंटल जो होती है आपको फेशियल, लिंगुअल और इंटरप्रॉक्सिमल सर्फेसेस में मिलती है, प्रोजेक्ट फ्रॉम द सीमेंटम इन अ फैन लाइक फैशन। अब ये नीचे डायग्राम देखो, ये बेसिकली आपको क्या करती है, ये जिंजिवोडेंटल जो है फेशियल, लिंगुअल और इंटरप्रॉक्सिमल सर्फेस में मिलती है। ये रही ना फैन लाइक सर्फ निकलती है यहाँ से, ठीक है, जो कि सीमेंटम को प्रोजेक्ट फ्रॉम द सीमेंटम होगा ना, यहाँ पे सीमेंटम से प्रोजेक्ट करती हैं, ठीक है। हो गया आपका, ये हो गया। उसके बाद सर्कुलर फाइबर्स जो होती हैं आपको सराउंड करती है टूथ को इन अ रिंग लाइक फैशन। उसके बाद आपके पास ट्रांससेप्टल फाइबर्स जो कि इंटरप्रॉक्सिमली हैं। उसके बाद आपके पास सेमी सर्कल फाइबर्स हैं जो कि ट्रांसनल ट्रैक्शनल फोर्सेस को बेयर करती हैं। अब ये क्वेश्चन है, ट्रैक्शनल फोर्सेस कौन बेयर करता है,
रिंग लाइक फैशन में कौन सा फाइबर अटैच करता है, इंटरप्रॉक्सिमली कौन सा प्रेजेंट होता है, फेशियल न्यूबस कौन सा वो फैन लाइक फैशन में प्रोजेक्ट करता है, जिंजिवो डेंटल, ये सब पूछा जाता है, ठीक है, सब क्वेश्चन है। उसके बाद प्रीडोमिनेंट सेल जो है आपको जिंजिवल कनेक्टिव टिश्यू में वो है फाइब्रोब्लास्ट। अब ऊपर क्या बताया था मैंने कि इसमें टाइप 1 कोलेजन जो है वो प्रीडोमिनेंट है, अब फाइब्रोब्लास्ट प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये सब ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फाइब्रोब्लास्ट है मीजेंकाइमल ऑरिजिन का है। अब देखो, अब एंडिंग पे ही आ गए, बस कुछ ही टॉपिक्स बचे। इसके बाद ये सब पूछने के बाद ये 2 चीज़ें वो पूछ लेता है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछा है, देखा है मैंने बहुत बार पूछते हुए, ब्लड सप्लाई ऑफ द जिंजिवा, 2 याद रख लो। एक सुप्रा पेरियोस्टल आर्टरियोल्स और वेसल्स ऑफ द पीडियल, ये 2 ही पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो ये वाला ऑप्शन देके पूछता है, ठीक है। अब एक्टिव है ना पैसिव इरप्शन, एक्टिव इरप्शन सबको पता है, व्हाट इज़ एक्टिव इरप्शन भैया, तो एक्टिव इरप्शन जो नॉर्मली अपना दांत निकलता है। व्हाट इज़ पैसिव इरप्शन, अब मैं डायग्राम इसका दिखा दूंगी ना, तो तुम डायग्राम से ही समझ जाओगे पैसिव इरप्शन क्या होता है। ये पैसिव इरप्शन, ये दिख रहा है, ठीक है। ये जो नीचे शिफ्ट हुआ है ना, और जिसकी वजह से आपको ये टूथ ज़्यादा अपीयर्ड दिख रहा है, ज़्यादा अपीयर्ड जो दिख रहा है, ये पैसिव इरप्शन है, ठीक है, समझ गए, पैसिव इरप्शन, ठीक है। अभी पैसिव इरप्शन जो है इसके 4 स्टेजेस हैं। अगर जंक्शन एपिथेलियम और बेस ऑफ द जिनेवल सर्कस इनामल के ऊपर है, वो स्टेज 1 है। स्टेज 2 है कि जंक्शन एपिथेलियम पार्टली इनामल के ऊपर है और पार्टली सीमेंटम के ऊपर है, जबकि जो आपका बेजल है, ठीक है, और जो जिनेवल सर्कस है, ठीक है, वो आपका इनामल के ऊपर ही है। थर्ड जो है आपका वो एंटायर जंक्शन एपिथेलियम जो आपका सीमेंटम पे और नीचे चला गया, और बेस जो है आपका सीजे पे है, सीमेंटम इनामल जंक्शन पे, ठीक है, वो धीरे धीरे से लग रहा है। और स्टेज 4 है कि दोनों के दोनों सीमेंटम पे है। अब ये स्टेजेस के ऊपर इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, बस खत्म। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट द जिंजिवा। सो नाउ इन द नेक्स्ट मैं कल ही एक डालूंगी दूसरी वीडियो इसकी। सो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका है चैप्टर 2 पे, चैप्टर 2 जो कि हम इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम पीडीएल पढ़ेंगे, हम सीमेंटम पढ़ेंगे, हम एनुलर बोन पढ़ेंगे, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। अभी आज जिंजिवा पे मैं क्लोज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट जब हम सेशन शुरू करेंगे तो उससे पहले हम डेंटल पर्स के क्वेश्चन करेंगे जिंजिवा के ऊपर। मैं चाहूँगी कि आप भी ट्राई कीजिए, ये जो नोट्स पढ़ाएँ सारे के सारे क्वेश्चन आपके डेंटल पर्स से इसी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर मैं कुछ टॉपिक भूल गई हूँ या कुछ इसमें मैंने कवर नहीं किया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ऐड कीजिए और मुझे बताइए ताकि मैं उसे फर्दर ऐड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। नाउ विल कनेक्ट यू अगेन। थैंक यू सो मच गाइस। जो ये नोट्स हैं ये पूरा का पूरा आपको अवेलेबल करूँगी मैं टेलीग्राम पे, एक चैनल बनाएंगे या फिर व्हाट्सएप पे बनाएंगे, देखते हैं कहाँ बनाते हैं, उस हिसाब से मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, सो दैट आपके पास रिविजन के लिए ये नोट्स भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू।